Ignited Minds Tutorials has recently shared a comprehensive video on the topic of nationalism in Europe, specifically tailored for CBSE students. The video delves into the rich history of European nationalism, covering the key events, ideologies, and movements that shaped the region's quest for independence and identity. From the French Revolution to the unification of Italy and Germany, the video provides an in-depth exploration of the forces driving nationalism in Europe. The tutorial is an invaluable resource for students studying this topic as it offers a detailed and engaging explanation of the subject matter by breaking down complex historical events and concepts. The video helps students grasp the significance and impact of nationalism on European history. Moreover, it serves as an aid for better understanding and preparation for CBSE exams. With this video, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of students and spark their curiosity about the fascinating history of nationalism in Europe. By providing accessible and informative content, the tutorial supports students in their academic journey and encourages a deeper appreciation for the complexities of nationalism in Europe. ओके, द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler. तो आपका भाई साहब देखो, हम यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे कंट्रीज यूनाइट हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमने देखा कि फ्रांस यूनाइट हुआ, फिर इटली, फिर जर्मनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इटली का देख रहे हैं, ठीक है। सार्डिना पिडमोंट इतना ऐसा ही, ये पूरा इटली का फैलाव था देखो, लेकिन सार्डिना पिडमोंट यहाँ पे सेंट्रल रूल था, ठीक है। सो द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, तो जो भी रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग थे, मतलब जो भी आपके रूल, मतलब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़े थे, ठीक है, बोथ इन 1831 एंड 1848 दोनों बार ये फेल हो गए, ठीक है। मेंट दैट द मैंटल नाउ फेल्ड ऑन सार्डिना पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल और सेकंड पे आपका पूरा भार आ गया इसको यूनाइट करने का, ठीक है, टू यूनाइट दिस कंट्री। ओके, इन द आईज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भाई साहब पूरे कंट्री का यूनिफिकेशन हो जाए तभी जाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, वरना आपसी में भाई साहब बटे रहेंगे और लड़ते झगड़ते भी रहेंगे, ठीक है। So, in the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development. What else? Political dominance. ठीक है, political dominance. ठीक है, Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. तो आपका भाई साहब आपने देखा जर्मनी के लिए कौन जिम्मेदार थे? Otto von Bismarck. ठीक है, he was the chief minister who was responsible for the unification of Germany. ठीक है। In the same way, Chief Minister Cavour in Italy was actually responsible for the unification of different states of Italy. ठीक है, neither a revolutionary nor a democrat. ना ही ये भाई साहब कोई विद्रोही थे और ना ही भाई साहब कोई डेमोक्रेट थे। डेमोक्रेट थे मतलब ना ही कोई सरकारी आदमी थे। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. तो इनको फ्रेंच ज्यादा अच्छा आता था और ये वेल्दी थे, पैसे वाले थे, ठीक है। He was basically Chief Minister Cavour. Okay. Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. तो Cavour ने किया क्या? What he did was, इन्होंने भाई साहब फ्रांस के साथ अलायंस मंगाया, मतलब फ्रांस के आर्मीज के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पावर बढ़ गया तो सार्डिना पिडमोंट जो इटली का मेन पार्ट हुआ करता था, that was successful in defeating the armies from Austria in 1859, ठीक है। So ये tactful था भाई साहब उनके लिए। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray, ठीक है। तो Giuseppe Garibaldi इन्होंने भाई साहब ये रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, इनके साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर दिया। Giuseppe Garibaldi was basically the leader. In 1860 they marched into south of Italy, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इसको भाई साहब एनेक्स कर लिया, ठीक है, इसको एनेक्स कर लिया। सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। यहां से भाई साहब स्पेनिश रूलर्स को भगाया। देखो किसी भी नेशन का बनना
उतना आसान नहीं होता। आपको जो आज की तारीख में चाहे एशियन कॉन्टिनेंट में हो, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो, चाहे भाई साहब आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में जितने भी नेशंस दिख रहे हैं मैप्स में, दे हैव नॉट फॉर्म्ड ओवरनाइट। इसके लिए काफी बड़ा स्ट्रगल हुआ है, ठीक है, हर एक नेशन में, और स्ट्रगल्स अलग अलग हुए हैं। कहीं कहीं पे भाई साहब नेशन स्टेट्स में अलग अलग रूलर्स थे, उनको भगाना, साफ करना, फिर जाकर आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन यही सच है कि हमको आज़ादी भले ही 1947 में मिला हो ब्रिटिश रूल से, लेकिन कुछ ऐसे किंगडम्स थे जिनको आज़ाद कराने में हमारे जूते घिस गए। फॉर एग्जाम्पल गोवा, विच हैपेंस टू बी अ हार्डकोर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, ये आज़ाद हुआ 1965 में। मतलब हमको गोवा का पोजीशन नहीं मिला था, हमको इंडियन आर्मी उतारनी पड़ी, तब जाकर वो दफा हुए वहां से, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। पौंडीचेरी, गोवा, दीज वेर स्टेट्स विच वेर बहुत देर बाद हुआ, तो यहाँ पे ये स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। दिस स्ट्रगल इज बेसिकली हैपनिंग। इन 1861 विक्टर इमैनुअल II was proclaimed the king of United Italy। यूनाइटेड इटली मतलब गुसेपी, गेब्राल्डी और बाकी सारे रूलर्स के चलते पूरे इटली को यूनाइट किया गया एंड ही बिकेम द किंग। सो विक्टर इमैनुअल II was proclaimed the king of United Italy। Are we clear? Okay. However, much of the Italian population among whom rates of literacy were very high। तो इनके अंदर भाई साहब रेट ऑफ लिटरेसी बहुत हाई था, वेरी हाई। अनपढ़ गवार लोग थे, रेट ऑफ इलिटरेसी काफी हाई था। रिमेन्ड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो क्योंकि इलिटरेसी हाई था इसीलिए ये अवेयर नहीं थे, ठीक है। आपके जितने भी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थे इससे ये अवेयर नहीं थे, ठीक है, दे वर नॉट अवेयर। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife, ठीक है। देखो, जब हम किसी देश को जोड़ते हैं ना तो उसके जोड़ने के काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज अगर कहीं पे जनगण मन प्ले हो रहा हो, आप समझ लो अमेरिका में है और कहीं पे जनगण मन प्ले हो रहा हो, तो आप खड़े हो जाएंगे भाई साहब, क्योंकि ये आपके देश से जुड़ा हुआ है। हो सकता है किसी अमेरिकन को ये मालूम ना हो, लेकिन आपको मालूम है ये आपका नेशनल एंथम है, ठीक है। तो ये आपको जोड़ रहा है। Despite the fact that you are in a different country, in a different culture, still it will connect you, ठीक है। तो लोगों को कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो गरीब पीजेंट्स जो थे वो अनपढ़ गवार थे और उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम मिलकर एक राष्ट्र बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। राष्ट्र, देखो, आप जितने गरीब होते हो और आप जितने अनपढ़ गवार होते हो, आप उतने ही सिर्फ अपने ही बारे में सोचोगे। ऑब्वियसली बात है भाई, मेरा घर चल जाए, मेरा फैमिली चल जाए, मेरे फैमिली में कोई भूखा ना रहे, यही आप सोचेंगे ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देश से मेरे को क्या लेना देना, मेरे घर में रोटी पकनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो मैं अनपढ़ गवार हूँ, पीजेंट हूँ, और मेरे घर में रोटी पकनी चाहिए, मेरे वो नीड्स मीट होने चाहिए, यही मेरा राइट है। अभी भाई साहब इधर इन लोग मिलकर भाई साहब कोई राष्ट्र बना रहे हैं, इनका भाई साहब बड़ा प्लान है, उसमें मुझे को क्या करना है, मुझे अपनी पगार मिले, मैं उसी में खुश हूं। तो देखो, ला इटालिया एक मोटो था, जैसे जनगण मन है, इसी तरह से ला इटालिया इज बेसिकली अ मोटो टू कनेक्ट द पीपल एंड यूनिफाई देम इनटू अ सिंगल कंट्री विच इज इटली। एंड इन लोगों को लगा, ये जो गवार लोग थे, इनको लगा कि भाई साहब विक्टर इमैनुअल जो किंग है उनकी वाइफ का ये नाम है, ठीक है। सो दे मिस इंटरप्रेटेड इट, ठीक है। द पीजेंट मासेस who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife, ठीक है। The strange case of Britain, तो हमने भाई साहब देखा जैसे तैसे भी हो, ठीक है, यहाँ पे यूनिफिकेशन हो गया। So in whatever ways the unification happened, so we have seen the unification of France, nation states कैसे फ्रांस को बनाया, नेशन स्टेट्स ने कैसे मिलकर जर्मनी को बनाया, नेशन स्टेट्स ने कैसे मिलकर इटली को बनाया। नाउ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन जो था उस टाइम पे इंपेरियलिस्ट नेशन था और एक स्ट्रॉन्ग नेशन था। सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट इज ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ओके, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। तो अब तक हमने मेन यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और इटली हो गया, इनके यूनिफिकेशन प्रोसेस में क्या देखा है कि कोई ना कोई रेवोल्यूशन हो गया है ना। कभी ऑटो वैन बिस्मार्क ने जर्मनी में रेवोल्यूशन करके जर्मनी को यूनाइट किया, कभी भाई साहब गिब्राल्डी ने भाई साहब इटली को किया, ठीक है। सो ये सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, मारामारी हुई थी, वॉर्स हुए थे,
तब जाकर यूनिफिकेशन हुआ था। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में सारे स्टेट्स यूनाइट हुए विदाउट एक्चुअली फाइटिंग एनी वॉर और विदाउट एनी रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। In Britain, the formation of the nation states was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was the result of a long drawn out process. तो बहुत बड़ा एक प्रोसेस था, long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. 18वीं शताब्दी के पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन था नहीं था, ठीक है। ओके, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वेर एथनिक वंस, ठीक है। तो ये ब्रिटिश आइल्स था और ये एथनिक आइडेंटिटीज थी। जैसे आपका हो गया भाई साहब इंग्लिश, ठीक है, देन वी हैव वेल्श, देन वी हैव स्कॉट एंड देन वी हैव आयरिश, ठीक है। ये सारे भाई साहब प्राइमरी एथनिक ग्रुप्स थे। सो एथनिक ग्रुप्स मतलब एक कल्चर को फॉलो करते, एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते, एक रिलीजन को फॉलो करते हैं। सो व्हाट वर द प्राइमरी ग्रुप्स? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश। दीज वेर द प्राइमरी ग्रुप्स दैट हैड इनहैबिटेड दिस आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसमें ये सारे फैले हुए थे, ठीक है, एथनिक ग्रुप्स थे, ठीक है। ओके, द इंग्लिश नेशन स्टडीली ग्रू इन वेल्थ। अभी भाई साहब इंग्लिश नेशन जो था उस टाइम पे बहुत पावरफुल था और फटाफट से भाई साहब इसमें पैसा आने लगा। पैसे आने का एक कारण ये है कि ये दूसरे नेशंस पे राज करते थे और पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। दैट वाज द सेकंड रीजन फॉर देम बीइंग वेल्दी, ठीक है। सो द इंग्लिश नेशन स्टडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस, पावर, ठीक है, ये सब आने लगा उनको, ठीक है। वेल्थ बढ़ने लगा, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इनके पास पावर भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब इनका मिलिट्री स्ट्रांग हो गया, इनके जो आर्म फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हो गए, इनके लीडर स्ट्रांग हो गए, ठीक है। गुड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। सो ग्रेट ब्रिटेन अपना इन्फ्लुएंस जो है दूसरे नेशन पे दिखाने लगा, ठीक है। इट स्टार्टेड शोइंग हिज इन्फ्लुएंस। द इंग्लिश पार्लियामेंट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्म, ठीक है। तो इंग्लिश पार्लियामेंट का निर्माण हुआ और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जैसे फ्रांस में बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था, या जर्मनी में हुआ था, या इटली में हुआ था बिफोर नेशनल असेंबली वाज फॉर्म और बिफोर अ नेशन वाज फॉर्म, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड हियर, ठीक है। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे द इंग्लिश पार्लियामेंट वाज इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्म्ड। नेशन स्टेट का निर्माण हुआ विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, ठीक है। तो protracted conflict मतलब कैसा है? कोई मारा मारी नहीं, अंडरस्टैंडिंग में। भाई साहब आपका टाइम खत्म हो गया है, मोनार्कियल रूल अभी बंद होने वाला है, सारे कंट्रीज में मोनार्कियल रूल बंद हो गया है, तो हमारे ग्रेट ब्रिटेन में भी यही होगा, बस सिंपल, खत्म। कोई मारा मारी नहीं, कोई राजा को मारना नहीं। राजा जैसे भाई साहब आपने देखा कि फ्रांस के राजा को राज्य छोड़ के जाना पड़ा लुईस 16 को, ऐसा कुछ वहां पे नहीं हुआ, ठीक है। सो मोनार्कियल रूल के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ एंड हो गया, ठीक है। ओके, व्हिच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोटेक्टेड। आज की तारीख में भी वहां पे किंग और क्वीन हैं, लेकिन पावरलेस हैं। दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दे आर पावरलेस, ठीक है। ओके, सो द इंग्लिश पार्लियामेंट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्म। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, ठीक है, 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, बड़े अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ। किसी ने किसी के ऊपर कोई मिलिट्री रिप्रेशन नहीं किया, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज एस्टैब्लिश्ड 1707 में ये हुआ, ठीक है। ओके, it meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। तो स्कॉटलैंड में पूरा इंग्लैंड का अधिकार हो गया। The British Parliament was henceforth dominated by its English members। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना और इसमें इंग्लिश मेंबर्स का दबदबा रहा, ठीक है। The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed, ठीक है। तो क्या होने लगा? देखो, स्कॉट के लोग थे यहाँ पे, स्कॉटलैंड पे भाई साहब ग्रेट ब्रिटेन ने अपना पूरा अधिकार जमा लिया, लेकिन धीरे धीरे स्कॉटलैंड के लोग थोड़े से रिप्रेस्ड होने लगे
उनको जॉब्स नहीं मिलता था, उनको भाई साहब सेम पोजीशंस नहीं मिलती थी, उनको डिमांड्स को नज़रअंदाज किया जाता था, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी, तो ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रोथ होने लगा, meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। तो स्कॉटलैंड का कल्चर, स्कॉटलैंड का जो ये था वो सप्रेस होने लगा, that started getting suppressed। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। जब भी भाई साहब स्कॉटलैंड के लोग थोड़ा सा भी अपना इंडिपेंडेंस दिखाने जाते थे, उनके ऊपर बहुत जोर शोर से सब कुछ ब्रिटिशर्स लोग इम्पोज कर देते थे, ठीक है। दे वर टेरिबली रिप्रेस्ड। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गेलिक लैंग्वेज, ठीक है। इनका लैंग्वेज जो था गेलिक था, और इनको भाई साहब बोल दिया गया था कि आप ये नहीं बोल सकते। तो थोड़ा बहुत विवाद था, ठीक है, लेकिन इस विवाद को अलग तरीके से सुलझाया गया, ठीक है। ओके, वियर देयर नेशनल ड्रेस, लार्ज नंबर्स वेयर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। तो बहुत बड़े तादाद में इनके लार्ज नंबर्स दे वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided into Catholics and Protestants। आयरलैंड में भी यही हाल हुआ। तो यहाँ पे कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डीपली डिवाइडेड था ये कंट्री, ठीक है। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री, ठीक है, एक लार्जली कैथलिक कंट्री। कैथलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेर सप्रेस्ड। तो जो भी कैथलिक रिवोल्ट्स हो रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, दे वर ऑल सप्रेस्ड। After a failed revolt led by Tone and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। तो आयरलैंड को हमने भाई साहब 1801 में यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है। तो आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट, a new British nation was forged through the propagation of dominant English culture। तो ब्रिटेन में क्या क्या इंक्लूड हो गया, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड दोनों भी भाई साहब ब्रिटेन में इंक्लूड हो गए, ठीक है। और इसमें डोमिनेंटली इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर था, ठीक है। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, ये आपका यूनियन जैक है, दिस इज बेसिकली द ब्रिटिश फ्लैग। द नेशनल एंथम, ये भाई साहब आपका नेशनल एंथम है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज, ये भाई साहब आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। वेर एक्टिवली प्रोमोटेड, तो मतलब ब्रिटिश फ्लैग को एक्टिवली प्रमोट करना, नेशनल एंथम को एक्टिवली प्रमोट करना, और इंग्लिश लैंग्वेज को were actively promoted, and the older nations survived only as a subordinate partners in this union। older nations कौन कौन से थे, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो वैसा भी ये मतलब पार्टनर की थे, जैसे बोलते हैं ना कि एक सुप्रीम होता है और दूसरे सब इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो वैसा हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवली प्रमोट होने लगा, ठीक है। सो विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब कैसा है, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go in giving a face to the nation। जैसे देखो हम बोलते हैं भारत माता, है ना, जनरली इंडिया में भारत माता बोला जाता है, ठीक है। अगर आप फ्रांस में जाएंगे, इट इज कॉल्ड फादरलैंड, ठीक है, पितृभूमि बोली जाती है। यहाँ पे जैसे मातृभूमि बोलते हैं, वहां पे पितृभूमि बोलते हैं। तो भारत माता का एक रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे वैसे ही फादरलैंड का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो आपको एक विजुअलाइजिंग इफेक्ट देना पड़ेगा। देखो लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है, जैसे अगर समझ लो आप अमेरिका में हो, और अमेरिका में हो, आपको डॉलर्स चलते हैं, सडनली आपके पॉकेट में से एक 5 रुपए का या 10 रुपए का या 100 रुपए का इंडियन नोट निकल आवे, तो आपको फटाक से इंडिया की याद आ जाएगी, है ना, यू विल गेट कनेक्टेड। सो ये होगा ही, आपके देश को आप जिन चीजों से जोड़ते हैं, आपके देश से आप किन चीजों से जुड़ते हैं, नेशनल एंथम से जुड़ते हैं, नेशनल फ्लैग से जुड़ते हैं, यहाँ के कल्चर से जुड़ते हैं, यहाँ के फूड से जुड़ते हैं, यहाँ के लोगों से आप जुड़ते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको जोड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंट्री के रिप्रेजेंटेशंस होने चाहिए, कंट्री के रिप्रेजेंटेशंस। व्हाई इट इज इजी टू एनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, हाउ डज वन गो अबाउट इन गिविंग अ फेस टू द नेशन, ठीक है। आर्टिस्ट इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। मतलब नेशन को एक ह्यूमन आकार दिया गया, पर्सोनिफाइंग अ नेशन। जैसे मैं अगर बोलूं बादल गरज रहे हैं, बादल ह्यूमन बींग्स थोड़े हैं जो गरजेंगे, या कोई एनिमल थोड़ी है जो गरजेंगे, ठीक है, लेकिन बादल गरज रहे, तो बादल को मैं पर्सोनिफाई कर रहा हूं। आई एम गिविंग, इज क्लाउड्स, आर क्लाउड्स लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है, तो लिविंग एक्टिविटी थोड़ी ना कर सकते। आप गरज सकते हैं, एक शेर गरज सकता है, ठीक है, लेकिन बादल कैसे गरजेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। इसी तरह से देश को भी आर्टिस्ट लोगों ने एक
पोर्ट्रेट से पर्सोनिफाई किया, ठीक है, ताकि देश से लोग जुड़े, ठीक है। आर्टिस्ट इन द 18th and the 19th century found a way out by personifying. In other words, they portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation in a concrete form. तो एक फीमेल फॉर्म दिया गया, जैसे हमारे यहाँ पे भारत माता है, ठीक है। भारत माता कोई किसी का मतलब कोई भारत माता एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उनको हमने एक आर्टिस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। भारत को भारत माता का छवि प्रदान किया है, ठीक है। सो भारत माता इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया, द इंडिया एज अ नेशन। भारत एक नेशन के ऊपर आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। शी इज नॉट अ लिविंग एंटिटी, ना कभी थी ना कभी हैं, लेकिन हमने पेंटिंग ऐसे बनाई है ताकि हम उससे कनेक्ट हो पाए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, वी विल गो अहेड विद दिस वन फ्रॉम टुमारो।